that is wrong. Fetal hemoglobin is alpha 2 gamma 2. It's not alpha 2 delta 2. Okay. One of the students pointed out yesterday that in the guideline it is written that fetal hemoglobin is alpha 2 and delta 2. So that is not right. Fetal hemoglobin is alpha 2 and gamma 2. Alpha 2 delta 2 is adult hemoglobin A2 type. ठीक है? गाइटन में आपके लिखा हुआ है कहीं पर हीमोग्लोबिन की जगह कि फीटल हीमोग्लोबिन अल्फा 2 डेल्टा 2 चेन का होता है, पर वो सही नहीं है, वो गलत लिखा है, अल्फा 2 गामा 2 का होता है। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो या गलती से जो भी हो, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। क्लियर? तो देयर माइट बी प्रिंटिंग मिस्टेक समवे और द अदर। ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए कि गाइडन में गलत लिखा है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो जो भी, पर वो गलत पॉइंट है। ठीक है, यूजुअली गाइडन इज नॉट रॉन्ग, गाइडन इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, बट there might be few places where the printing mistake or because of whatever reason I don't know, but there are certain sentences which are not correct. जैसे हीमोग्लोबिन एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो भी is equal to 1 लिखा था, that is not 1, that is always more than 1. ठीक है, so we'll continue with the hemoglobinopathies. Hemoglobinopathy means disorder of hemoglobin, either defective hemoglobin is produced or abnormal quantity of hemoglobin is produced, is synthesized in insufficient amount. Okay, so that is known as hemoglobinopathies. Either the hemoglobin produced is defective or the quantity produced is insufficient. Okay, clear? Now if the hemoglobin is defective, the defect is always in the globin chain. हीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अक्सर हीम तो जैसे बनता है बन जाता है, ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ जाता है, ग्लोबिन चेन के अल्फा चेन या बीटा चेन या जो भी ग्लोबिन का चेन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, सो hemoglobinopathies कैन बी ऑफ 3 टाइप। द सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, उसे हीमोग्लोबिन एस कहलाता है। देन देयर इज मेथ हीमोग्लोबिनीमिया एंड देन देयर इज थैलेसीमिया। ओके, so in sickle cell anemia there is mutation in the beta chain. ठीक है, अल्फा चेन बीटा चेन, अडल्ट हीमोग्लोबिन के दो चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, अल्फा 2 बीटा 2। सो इन सिकल सेल एनीमिया देयर इज म्यूटेशन इन द बीटा चेन। क्या म्यूटेशन होता है? ग्लूटामेट एट पोजीशन 6 इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, एक अमीनो एसिड का बस म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन कई तरह के हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, सेगमेंट म्यूटेशन, बहुत बड़ा चेन भी म्यूटेट कर सकता है। तो दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक अमीनो एसिड आपका चेंज हो गया। सो इन दिस सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामेट amino acid at position 6 is changed by or replaced by valine. Now glutamate is a polar amino acid. Polar means hydrophilic, water loving, and valine is non-polar, it's hydrophobic. ठीक है, so at position 6 glutamate is replaced by valine. That is the point mutation happening in sickle cell anemia. So what happens in sickle cell anemia? This slide shows a normal RBC. So the normal RBC flows in a capillary, okay, and they are compressible, they are flexible, they can change their shape and move around in the capillaries. When the sickling happens, the RBC, they become sickle shape like this, okay, and these sickle shape cells, they are sticky. एक तो उसका शेप चेंज हो जाता है, आरबीसी का सिकल शेप बन जाता है। ठीक है, और ये सिकल शेप्ड आरबीसी जो होते हैं ये स्टिकी होते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सो दे ब्लॉक द वेसल्स, कैपिलरीज जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ना, क्या है ये, व्हाट इज एंड करो। Okay, so these sickle shaped cells, they become sticky, they stick together and then they block the capillaries. Okay, so blocking of the capillary results in cessation of blood flow. जहां कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है उसके बियॉन्ड ब्लड फ्लो रुक जाता है। ठीक है, सो टिश्यू तक ब्लड पहुंच नहीं पाता। सिकलिंग ब्लॉक्स पर्टिकुलर कैपिलरीज एंड देन द
blood is not able to move through that capillaries. The flow of blood is stopped. So the tissue which are beyond that blocking point, they are devoid of oxygen. वहाँ oxygen नहीं पहुँचता है. So ultimately that there is pain and the tissue may die. ठीक है? So this happens in the sickle cell anemia or when there is hemoglobin S. ठीक है? Clear? So interrupted supply of oxygen because of the blockage of the capillaries is lead to localized anoxia. Anoxia is absence of oxygen in the tissue. Okay, this absence of oxygen in the tissue causes pain and eventually there is death of the cell. Okay, so that's how the pathology of sickle cell anemia is there. Sickle cell anemia में ये होता है. And moreover, sickling of the RBC makes it fragile. RBC की जो flexible shape होती है, जो RBC के अंदर जो एक flexibility होती है, that can distort itself and move across the capillaries. That flexibility is lost whenever there is sickling. So sickled RBC, they are weak and they get destroyed easily. So there is premature destruction of the sickled RBC. As such, there is anemia. Okay, sickling decreases the lifespan of RBC. And there is rapid destruction of RBC and there is hemolytic anemia. Okay, hemolytic anemia means hemolytic anemia means there is decrease in the RBC due to destruction of the RBC. Hemolytic means lysis of the blood cell. So hemolytic anemia means destruction of the RBC, because of which there happens to be anemia. Anemia can be of many types. कई तरह के anemias होते हैं. So hemolytic anemia is destruction of the RBC or lysis of the RBC that results in anemia. Okay, now the second hemoglobinopathy, which is known as the methemoglobinemia. Methemoglobinemia में क्या होता है? The ferrous form is oxidized to the ferric form. Okay, जो ferrous form है, normally in the hemoglobin, iron exists in the ferrous form. ठीक है? Methemoglobinemia में this ferrous form is changed to ferric form, and a ferric form iron, it cannot combine with oxygen. ठीक है? So this ferric form of hemoglobin or methemoglobin is a chocolate color in it provides the blood a dark chocolate color because this methemoglobin is a dark colored hemoglobin. Chocolate dark brown color का होता है. So the blood of the person having methemoglobinemia is instead of being red, it's chocolate brown. Okay. So it is also known as chocolate cyanosis because cyanosis means bluish discoloration of the skin. Here there is brownish blue discoloration of the skin because of absence of oxygen. There is more carbon dioxide present, but oxygen is not present because the ferric form of iron in the methemoglobin, it cannot combine with oxygen. Okay, so this happens in methemoglobinemia. Hemoglobin cannot bind with oxygen. Now in thalassemia, what happens? The third hemoglobinopathy is thalassemia. In thalassemia, there might be either problem in the alpha chain or the beta chain. तो alpha thalassemia भी होता है, beta thalassemia भी होता है. We won't go into detail of thalassemia. ये आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. But there might be an alpha chain defect. उस कंडीशन में इसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं. और देयर माइट बी बीटा चेन डिफेक्ट. इस कंडीशन में इसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं. ठीक है? अगर नो अल्फा चेन इज प्रोड्यूस, इट इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया. इफ नो बीटा चेन इज प्रोड्यूस, इट इज नोन एज बीटा थैलेसीमिया. इसमें एब्सेंट होता है. आइदर देयर माइट बी एब्सेंस ऑफ बीटा चेन और देयर माइट बी एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन. ठीक है? नाउ अनदर थिंग इज, एक हीमोग्लोबिन होती है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. शॉर्ट फॉर्म इसका HbA1c होता है. सो किसी को आइडिया है ये क्या होता है HbA1c? व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन?
Sir, हाँ sir, I think in HbA1c, some amount of sugar combines with the hemoglobin. It is especially seen in diabetic patients. diabetes patient. This is basically whenever sugar is more, जैसे डायबिटीज के पेशेंट में होता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा होता है. जब ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दैट शुगर समटाइम कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. दैट इज the carbohydrate molecule of the sugar, it combines with hemoglobin, and that hemoglobin is known as glycosylated hemoglobin, and this is known as HbA1c. ये एक important test है आपके 3 month का, जैसे किसी ने लिखा था 3 month record of sugar. Why it is 3 month record of sugar? Why not 6 month? Why not 2 month? Or why not 1 month? किसी ने लिखा है, सही लिखा है उसने, this provides a 3 month record of sugar. तो why 3 month? ये बेसिकली डायबिटीज का आप जब भी टेस्ट कराते हैं ना, तो आपके ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल और HbA1c की टेस्टिंग होती है. HbA1c इज द ग्लूकोज कॉम्बाइंड विथ हीमोग्लोबिन. ठीक है, यस, भाव्य गर्ग इज राइट. इट्स लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन तकरीबन 90 to 120 डेज बोलते हैं, एवरेज 90 to 100 मानते हैं, तो 90 डेज इज 3 month. तकरीबन 120 दिन भी होगा, अगर वो वेरी करता है, किसी आरबीसी की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, एक फिक्स लाइफ नहीं होती. 90 to 120 डेज का रेंज होता है. तो एवरेज हम 3 month ले लेते हैं, 90 डेज. तो 90 डेज तक आरबीसी रहेगा जिंदा, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी इंटैक्ट रहेगा. तो उसके साथ जो शुगर अटैच्ड होगा, तो वो जितना शुगर ज्यादा होगा उतना ज्यादा शुगर अटैच होगा. तो HbA1c को हम मेजर करते हैं, तो वो बताता है कि पिछले 3 महीने में आपके बॉडी में शुगर कितना था. अगर वो HbA1c बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा शुगर था. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. ये डायबिटीज के पेशेंट में करते हैं चेक करने के लिए कि उन्होंने दवा सही से ली कि नहीं ली, क्योंकि हो सकता है कि वो दवा ना ले रहे हों और आपको आके बोल दें कि नहीं डॉक्टर साहब, दवा तो हम रोज दिन खा रहे हैं. तो HbA1c जो है, अगर आप दवा रोज दिन खा रहे हैं, डायबिटीज का मरीज जो है वो हर दिन नहीं आता है ना, आपने उसको एक बार दवा प्रेस्क्राइब कर दी, फिर कहा कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आके फिर दिखा. ठीक है, तो वो 2-4 महीने बाद आएगा, आपने उससे पूछा कि दवा ले रहे थे, तो वो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब ले रहा था. तो जरूरी नहीं है कि वो ले रहा था, हो सकता है वो झूठ बोल रहा, वो भूल गया और दवा लेना, लेकिन उसने आपके डर से कह दिया कि हाँ डॉक्टर साहब दवा तो मैं रोज खा. तो आप उसका HbA1c आप करेंगे, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. अगर वो कम आ रहा है HbA1c, तो इसका मतलब वो दवा ले रहा था, ग्लूकोज उसके कंट्रोल में था. ठीक है, इफ HbA1c इज मोर, दिस मीन ही इज लाइंग, ही वाजंट टेकिंग ड्रग. और दूसरा ये हो सकता है कि द ड्रग वाज नॉट एक्टिंग, यू नीड टू चेंज द ड्रग. ठीक है, वो ड्रग उस पेशेंट में इफेक्टिव नहीं है. ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो ड्रग ले रहा था, लेकिन वो ड्रग उस पेशेंट में इफेक्टिव ना हो. ये दो कंडीशन हो सकती है, आइदर ही इज लाइंग, ही हैजंट टेकन द ड्रग. अगर HbA1c ज्यादा आ रहा है, तो आपको पता चल सकता है कि द पेशेंट वाज नॉट टेकिंग द ड्रग और द ड्रग इज नॉट वर्किंग. ठीक है, क्लियर? सो नाउ द सेम क्वेश्चन अगेन. अब तो सब सही बता देंगे. ठीक है, ज्यादातर लोगों के आंसर सही थे, इसलिए विल मूव ऑन. ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप तो सही होनी चाहिए आंसर. ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया. ठीक है, so our learning objective for this session, anemia and polycythemia, will be at the end of the session you will be able to define anemia and describe the WHO gradings of anemia, and discuss the morphology and etiology of anemia and the classification of anemia, plus the physiological effect that anemia has on your body, and then in the end we'll talk about polycythemia and its classification. Right? My voice is clear to everyone? Okay.
So what is anemia? एक जनरल डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होगा एनीमिया का, जो कहते हैं कि एनीमिया का मतलब खून की कमी, आरबीसी की कमी। ठीक है, वो एनीमिया एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि एनीमिया मीन्स देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी या खून की कमी। ठीक है, बट अ मोर better explanation or definition of anemia is a decreased oxygen carrying capacity of the blood. It might be due to decrease in the RBC quantity or in the quality of the RBC. Okay, या तो आरबीसी आपके डिफेक्टिव हैं, क्वांटिटी सही है आरबीसी पर आरबीसी डिफेक्टिव है। ठीक है, या फिर आरबीसी सही है लेकिन क्वांटिटी कम है। सो एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिडक्शन इन आरबीसी काउंट्स एंड सब्सिक्वेंट हीमोग्लोबिन काउंट। जब आरबीसी कम होगा या डिफेक्टिव होगा तो हीमोग्लोबिन भी उसके अंदर जो है या तो कम होंगे या डिफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, so it's basically the decrease in the oxygen carrying capacity of the blood, that is anemia. Now that decrease can be due to defective RBC or can be due to quantitative reduction in the RBC. ठीक है, the name anemia is derived from a Greek word aneima, means lack of blood. Okay, so lack of blood basically उतना lack of blood नहीं होता है, पर ये anemia जो drive है ये lack of blood है, and lack of blood may result in decreased oxygenation, तो वही anemia है। So एक जनरल क्लासिफिकेशन एनीमिया के हम लोग हीमोग्लोबिन पे लेते हैं, क्योंकि आरबीसी डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। तो हीमोग्लोबिन की क्लासिफिकेशन पे इफ द हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन 13 ग्राम पर डेसिलीटर इन मेल्स, लेस देन 12 ग्राम पर डेसिलीटर इन फीमेल और लेस देन 15 ग्राम पर डेसिलीटर इन न्यूबॉर्न, देन वी से द पर्सन इज हैविंग एनीमिया। ओके, क्योंकि मेल्स में आरबीसी और हीमोग्लोबिन के नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए मेल का थोड़ा कट ऑफ पॉइंट भी ज्यादा होता है। 13 gram per deciliter in males, 12 gram per deciliter in female, and 15 gram per deciliter in newborn. These are the cutoff points for the hemoglobin level below which we say the person is having anemia. A factor affecting O2 deaceration curve, someone is saying रह गया था, नहीं वो रह गया था, वो जान के छोड़ दिया था। That we will discuss in the respiration chapter. ठीक है, उस पर अभी हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे। वो जो आपका रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन और गैसियस ट्रांसपोर्ट जब पढ़ाया जाएगा उसमें वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसलिए उसे छोड़ दिया था, अभी उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द O2 डियोक्सिडेशन कर्व, दोबारा दो चीज फिर डबल डबल हो जाएगी, आपको रेस्पिरेशन में वो पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीजन डिपेंड करता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट इन द रेस्पिरेशन चैप्टर। So this is just a diagrammatic or you can say photographic representation of an anemic person's hand compared with a normal person's hand. ठीक है, you can see the paleness of the anemic person's hand. A normal person's hand is having reddish appearance, whereas on the left side, if you see this hand on the left side, the reddish appearance or reddish tinge is not there. ठीक है, it's a bit pale as compared to the normal person's hand. ठीक है, now move on to WHO gradings of anemia. Okay, they are gradings. एक तो हमने कट ऑफ देख लिया कि इसके नीचे होगा तो हम एनीमिया बोलेंगे, लेकिन एनीमिया की ग्रेडिंग्स भी हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, इससे पहले जिस स्लाइड पर हमने दिखाया था वो कहा था कि 13 से कम होगा मेल्स में तो एनीमिया होगा, 12 से कम होगा हीमोग्लोबिन फीमेल में तो एनीमिया होगा। वो तो एनीमिया होगा ना, एनीमिया की ग्रेडिंग्स भी है। एनीमिया अगर है किसी को तो हम उसे ग्रेड करते हैं। ठीक है, ग्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटी, यानी बहुत सारी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन होना है तो उस पे एनीमिया की ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सीवियर एनीमिया है तो जब तक उस एनीमिया को हम करेक्ट नहीं करते, हम यूजुअली बहुत सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करते, क्योंकि उसमें फिर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे तो और एनीमिया डिग्रेड कर जाएगा, डिटोरिएट कर जाएगा एनीमिया और सीवियर से और कम हो जाएगा।
इसीलिए ये हम ग्रेडिंग करते हैं कि ग्रेडिंग के बेसिस पे हम कोई प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन करें या ना करें, ये हमें पता चले। ठीक है, सो वी ग्रेड द एनीमिया इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। Then moderate and severe, that grading is same for men and women. Okay, for male and female, the grading for moderate and severe is same. अगर आप यहाँ टेबल देखें, ठीक है, सो मॉडरेट 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर टू 8 डेसीलीटर, ये मॉडरेट है। ये ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन दिखा रहा है, यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज द हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीलीटर। क्योंकि मेल्स में हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो माइल्ड का कट ऑफ है वो बस चेंज है। मेन में जो माइल्ड कट ऑफ है वो 12.9 टू 11 है, वेयर एज इन फीमेल इट इज 11.9 टू 11। बाकी दोनों मॉडरेट और सीवियर की जो कट ऑफ है ग्रेडिंग है, दे आर बोथ सेम फॉर मेल एंड फीमेल। ओके, ठीक है, सो लोअर देन 8 अगर हीमोग्लोबिन होता है, चाहे वो मेल में या फीमेल में, उसमें सीवियर ग्रेडिंग करते हैं, दैट द पर्सन इज हैविंग सीवियर एनीमिया। Now coming to classification of anemia. Now anemia can be classified in two ways: morphological classification and etiological classification. Morphology means size and shape, कि आरबीसी का शेप देखते हैं, ठीक है, उसकी साइज देखते हैं, उस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि आरबीसी, कलर भी देखते हैं उसमें, दैट इज मॉर्फोलॉजी, कलर, शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। उसके बेस पे भी हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं एनीमिया का, कि आरबीसी कितनी छोटी है, आरबीसी का कलर कैसा है, ठीक है। और एक होता है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एटियोलॉजी मींस द रीजन, कॉज, किस वजह से एनीमिया हो रहा है, उसके बेस पे हम एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं। सो देयर आर टू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा ओवरलैपिंग भी है, ऐसा नहीं कि मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग, दोनों में थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस बोथ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज द एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। Morphological classification is based on the size, shape, and color of RBC, and etiological classification is based on the reason why the anemia is happening. Etiology word का मतलब होता है reason, cause, ठीक है। So anemia can be classified into etiological, that is based on the cause, or morphological, that is based on the shape and color. So if we look at the etiology or cause of the anemia, कि एनीमिया हो क्यों रहा है किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, अगर उसकी हम etiology पे जाएंगे तो 3 क्लासिफिकेशन है। पहला जो बहुत कॉमन है, जो कई बार बताया दिया है अभी आप लोगों को, either there is impaired or defective RBC प्रोडक्शन। आरबीसी का प्रोडक्शन, जो आरबीसी बन रहे हैं वो डिफेक्टिव आरबीसी बन रहे हैं। अगर आरबीसी डिफेक्टिव होगा तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी मोर और लेस डिफेक्टिव होता है। तो either the RBC production is defective or the number impaired, मतलब जितना RBC बनना चाहिए उतना बन नहीं रहा है। सो RBC के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन या तो गलत हो रही है या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, ठीक है। सो देयर इज impaired or defective production of RBC, ये पहला रीजन है एटियोलॉजिकल। दूसरा है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिसको हम हीमोलिसिस भी बोलते हैं, कि आरबीसी बिल्कुल सही बन रही है, क्वांटिटी भी सही है, पर किसी वजह से बॉडी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, ठीक है। वो वजह क्या है, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। पर यह है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, क्वांटिटी सही है, क्वालिटी सही है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से आरबीसी का अमाउंट कम हो जा रहा है बॉडी में। सो दिस इज नोन एज द hemolysis or excessive destruction of RBC. Lysis means breakdown, hemo means blood. So there is excessive breakdown of the blood. ठीक है। तीसरा रीजन है ब्लड लॉस और हैमरेज, यानी कि आपके बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया, जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, someone met with an accident, so in that accident there might be a loss of blood, रोड ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें ब्लड का लॉस हो सकता है, सो ब्लड लॉस विल आल्सो रिजल्ट इन एनीमिया, ठीक है। तो ये 3 रीजन है एटियोलॉजिकल कॉज में, क्लासिफिकेशन में। Anemia can be because of impaired or defective RBC production. It can be because of excessive destruction of RBC,
और इट कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, और जिसको हम हेमरेज भी बोलते हैं। ये हो गया आपका एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बहुत सिंपल है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 होती है। मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और सिटिक रेफर्स टू सेल। सो मैक्रोसिटिक मीन्स लार्ज सेल, ठीक है। सो मैक्रोसिटिक एनीमिया, आरबीसी सेल्स दे आर लार्ज, ठीक है, क्लियर। Microcytic hypochromic. Microcytic, micro means small, cytic refers to cell. So microcytic means small cell. And hypochromic, chrome refers to color. So hypochromic means the color is also less. यानी आरबीसी का जो रेड कलर है वो भी कम है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि हीमोग्लोबिन कम है उसमें, ठीक है। So microcytic, the cell size is small. Hypochromic means the color is less dark in color. So microcytic hypochromic anemia, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब सेल का साइज भी नॉर्मल है, सेल का कलर भी नॉर्मल है, बट स्टिल एनीमिया इज देयर, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी 3 है। मैक्रोसिटिक एनीमिया, द सेल्स आर वेरी लार्ज। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सेल्स आर स्मॉल एंड द सेल्स दे हैव लेस कलर इन देम, पेल होते हैं। And the normochromic normocytic anemia, the cells are normal in size, the color of the cell is also normal. Normochromic means normal color, normocytic means normal size. Okay, so now we'll discuss these classifications separately. सबसे पहले हम एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? इम्पेयर्ड डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन। सो इम्पेयर्ड डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन किस वजह से हो सकता है? अब वजह पता करेंगे, ठीक है। कि जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट था इम्पेयर्ड डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन। सो व्हाई देयर इज इम्पेयर्ड और डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन? इम्पेयर्ड डिफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल बोन मैरो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द आरबीसीज, मेजॉरिटी का ज्यादा in adults में almost all the RBCs they are produced by the bone marrow. Majority is produced by that of the flat bones, or some amount is produced by the long bones, the proximal part of long bones. ठीक है। So if there is abnormality in the bone marrow, ठीक है, तो उसमें होता है जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है बोन मैरो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बोन मैरो का या तो एब्सेंस है या बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। दूसरा है माइलोफाइब्रोसिस। यहाँ पे आप रीजन देखिए, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस का मतलब भी वही होता है कि जो मैरो था वो फाइब्रोस्ड हो गया, वो हार्ड हो गया, उसके अंदर फाइबर्स आ गए, वो माइलोफाइब्रोसिस डिजीज। ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल कैंसर। तो व्हाइट ब्लड सेल इतने प्रोड्यूस होने लगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया। और कैंसर मेटास्टेसिस, यानी कोई भी और कैंसर, मेटास्टेसिस का मतलब होता है फैलना। बॉडी में कोई भी कैंसर हो, अगर वो फैल के बोन मैरो तक आ गया तो वो मैरो सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। इन सारे कंडीशन में बोन मैरो की एबनॉर्मेलिटी होगी और आरबीसी का प्रोडक्शन डिफेक्टिव होगा। दूसरा क्या है? एसेंशियल फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी जिन जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है आरबीसी के प्रोडक्शन में, जैसे आयरन की, विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की, या इन सब फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो आरबीसी का प्रोडक्शन डिफेक्टिव होगा। अगर विटामिन B12 नहीं होते तो मैक्रोसाइट्स बनते हैं, ये पढ़ाया था क्रिएटर में, बड़े से गोल से आरबीसी बनते हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, then the RBC form will be defective. या फिर किडनी में प्रॉब्लम है तो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कम होगा, because kidney are the main source of erythropoietin production. So if there is kidney disease, there will be decreased amount of erythropoietin production. ये भी RBC के प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा। ठीक है, ये प्लास्टिक एनीमिया जो यहाँ फर्स्ट कॉज था एबनॉर्मल बोन मैरो, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है कि एप्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो, या तो बोन मैरो एब्सेंट हो जाता
है या बोन मैरो काम ही नहीं करता। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाई डोज रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी होती है कैंसर पेशेंट्स में, उनमें रेडिएशन, हाई डोज रेडिएशन देते हैं, ठीक है। जो एक्सरे पार्टिकल्स होते हैं उस टाइप के रेडिएशन वाले, वो हम हाई डोज रेडिएशंस देते हैं जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट दीज हाई डोज रेडिएशन दे आल्सो डिस्ट्रॉय द मैरो सेल्स, बोन मैरो को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी कैंसर पेशेंट में देखेंगे ना, तो वो काफी एनीमिक होते हैं कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनकी लगातार रेडिएशन चलती है और कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब मल्टीपल ड्रग्स चल रहे हैं। तो दीज मल्टीपल ड्रग्स एंड रेडिएशंस दे डैमेज द बोन मैरो, ठीक है। और जिसका बोन मैरो डैमेज बहुत सीवियर हो जाता है, दे मे डाई इफ ब्लड इज नॉट ट्रांसफ्यूज टू देम, यानी उनका बोन मैरो इतना सीवियर डिसफंक्शन हो जाता है कि वो आरबीसी या कोई भी ब्लड सेल्स बनाना ही बंद कर देता है, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ब्लड इज नॉट ट्रांसफ्यूज टू देम, दे मे डाई। ठीक है ना। सेकेंड कॉज, ये तो पहला कॉज था, एटियोलॉजिकल में इम्पेयर्ड डिफेक्टिव प्रोडक्शन हमने देखा। सेकेंड कॉज था इसका क्या? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। अब उस पर बात करते हैं हम कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी क्यों होता है, ठीक है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन और हिमोलिसिस ऑफ द आरबीसी, ये भी आरबीसी के कई वजह से हो सकते हैं। या तो आरबीसी डिफेक्टिव बना हो, पहला कॉज जो था एटियोलॉजिकल कॉज में, इफ द आरबीसी इज फॉर्म डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव आरबीसी है तो वो जल्दी टूट जाता है, डिफेक्टिव आरबीसी, बिकॉज डिफेक्टिव आरबीसी दे आर फ्रेजाइल। सो जो पहला कॉज था उसी की वजह से सेकंड कॉज भी आ सकता है। पहला कॉज था डिफेक्टिव आरबीसी, द आरबीसी इज डिफेक्टिव, देन द आरबीसी आर फ्रेजाइल, so there is excessive destruction of the RBC, especially when they pass through narrow capillaries, ठीक है। So the lifespan of fragile RBC is very less. So if the RBC are abnormal, then it doesn't matter whether they are produced in large quantity or not. अगर abnormal RBC है तो चाहे वो बहुत ज्यादा भी क्यों ना बन रहे हो, वो डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाएंगे, तो फिर RBC की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब हिमोलिसिस या डिस्ट्रक्शन क्यों होते हैं? या तो आरबीसी में कमी हो, इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी मतलब आरबीसी की एबनॉर्मेलिटी हो। वो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? स्फेरोसाइटोसिस एक कंडीशन होता है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, यानी आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है वो डिफेक्टिव बना है, उसके चक्कर में आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है, बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप, वो नहीं हो पाता, आरबीसी गोल से हो जाता है। क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने बताया था ना, स्पेक्ट्रिन एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो आरबीसी की नॉर्मल शेप मेंटेन करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में डिफेक्ट आता है तो आरबीसी वो डिस्क शेप नहीं बन पाते, वो गोल से बन जाते हैं। तो ये इतने तरह के बन सकते हैं। स्फेरोसाइटोसिस मतलब स्फेरिकल हो जाएंगे, ओवेलोसाइटोसिस यानी उनका जो है राउंड नहीं, थोड़ा सा ओवल एक शेप हो जाएंगे, इलिप्टोसाइटोसिस इलिप्टॉइड शेप हो जाएंगे, मतलब घूमे से थोड़े साइन वेव टाइप ऐसा शेप, वो इलिप्टोसाइटोसिस कहलाते हैं। तो ये सब डिफरेंट शेप्स ऑफ आरबीसी के बनेंगे, डिफेक्टिव आरबीसी। या फिर आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होती है G6PD, G6PD एंजाइम की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो वो भी आरबीसी को फ्रेजाइल बना देती है, इजिली आरबीसी ब्रेक कर जाता है, ठीक है। या फिर थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया हो, उसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है, और तो उसमें भी आपके बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन डिफेक्ट द आरबीसी इज डिफेक्टिव एंड दे आर इजिली ब्रोकन। तो ये आरबीसी का डिफेक्ट हो गया। इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी, इंट्रिंसिक मींस पर्टेनिंग टू द आरबीसी। ये आरबीसी इंट्रा कॉर्पस्कुलर लिखा है ना यहाँ पे, यानी कॉर्पस्कुलर कहते हैं सेल, इंट्रा कॉर्पस्कुलर मतलब सेल की अपनी एबनॉर्मेलिटी, इंट्रिंसिक ये आरबीसी की एबनॉर्मेलिटी। एक और रीजन हो सकता है एक्सट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी, यानी आरबीसी बिल्कुल सही है पर कोई और रीजन है, एक्स्ट्रा रीजन, बाहर का रीजन जो आरबीसी को मार रहा है। क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। एंटीबॉडी यानी कि आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे कि एक बहुत कॉमन है ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है, उसका एक एग्जांपल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और RH डिजीज, यानी बॉडी के अपने सेल के खिलाफ उसमें एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो उन कंडीशन में जो एंटीबॉडी बनी वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरा इसमें क्या रीजन आ सकता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी आपने गलत ब्लड चढ़ा दिया, कोई A पॉजिटिव
बंदा था, उसको आपने बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। ना बी वाली एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके ए को डिस्ट्रॉय करेंगी, या उल्टा भी होगा, ए की एंटीबॉडी बी को डिस्ट्रॉय करेंगी, सो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो उस चक्कर में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन है, इसमें आरबीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आरबीसी बिल्कुल सही था, लेकिन एक्सट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी, बाहर की एबनॉर्मेलिटी कुछ थी। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे टेटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या मलेरिया है, इनमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, और मैकेनिकल ट्रॉमा टू रेड ब्लड सेल, मैकेनिकल ट्रॉमा यानी आरबीसी को एक्सटर्नल प्रेशर ट्रॉमा पर है, जैसे आपकी कैपिलरीज की हार्डनिंग हो गई, अगर ओल्ड एज में कैपिलरीज हार्डेंड हो जाते हैं, कैपिलरीज में फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाता है, एथ्रोमा बन जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उन सब कंडीशन में देयर इज मैकेनिकल ट्रॉमा टू रेड ब्लड सेल, उसके वजह से वो रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ द लास्ट रीजन फॉर एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ब्लड लॉस, जिसको हम लोग हिमोलिसिस भी बोलते हैं, या हेमरेज, सॉरी हिमोलिसिस नहीं, हेमरेज भी बोलते हैं, हिमोलिसिस तो इससे पहले वाला था एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। ब्लड लॉस क्लासिफिकेशन, ब्लड लॉस बहुत सिंपल है, समझाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्सीडेंट से या सर्जरी की वजह से अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो दैट विल रिजल्ट इन लो ब्लड इनसाइड योर बॉडी, एंड सो दैट मींस लो आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी कंसंट्रेशन आफ्टर अ मैसिव ब्लड लॉस यूजुअली 6 हफ्ते लग जाते हैं, आपकी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है ना, तो तकरीबन 6 हफ्ते तक लग जाते हैं अगर मैसिव ब्लड लॉस है। मैसिव ब्लड लॉस कहते हैं ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 20%। ठीक है, यानी आपका ब्लड 5 लीटर है, 1 लीटर से ज्यादा खून बह गया अगर 20% हो, दैट इज नॉट मैसिव ब्लड लॉस। तो मैसिव ब्लड लॉस में यूजुअली आरबीसी को वापस आने में तकरीबन 6 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, और प्लस मैसिव ब्लड लॉस को आपको जल्दी करेक्ट भी करना होता है, वो तो आरबीसी की बात है 6 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन अगर 1 लीटर खून आपके बॉडी से बह गया ना, तो वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है कि उसमें आपको फौरन ब्लड देना भी पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ब्लड लॉस किन किन कंडीशन में हो सकता है, ट्रॉमा और सर्जरी, फिर इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन, वो वॉर्म जो है वो आपके ब्लड को या तो फीड करते हैं ब्लड पे, या दे डिस्ट्रॉय योर ब्लड सेल्स। ठीक है, टेप वॉर्म इन्फेक्शन है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन है, ये सब वॉर्म्स आपके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, एंड दे फीड ऑन योर ब्लड। ठीक है, उसमें भी ब्लड लॉस होता है। फिर इफ देर इज एनी अल्सर इन जीआईटी, वहां अल्सर से या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो, इंटरनल आपके बॉडी में कोई अल्सर बन जाए या कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी बाहर से नहीं दिख रही है आपको ब्लीडिंग हो रही है, पर बॉडी के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, दैट may also result in blood loss. Now coming to morphological classification, ये सब बातें हो रही थी इटियोलॉजिकल की, रीजन क्या है एनीमिया होने का। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कलर। ठीक है, तो साइज कम है या ज्यादा है, इसके लिए आपको नॉर्मल साइज पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइज क्या होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का नॉर्मल साइज हमने जब आरबीसी पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि फेम्टोलीटर में मेजर करते हैं, एंड नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी इज अराउंड 80 to 100 फेम्टोलीटर। जो यहाँ पर बीच वाले पॉइंट में दिखा रहा है नॉर्मोसिटिक, यानी ये नॉर्मल सेल है, और इसका साइज एमसीवी का मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एम स्टैंड्स फॉर मीन, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्पस्कुलर, एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। So mean corpuscular volume gives the average size or volume of RBC, and it is normally 80 to 100 femtoliter. ठीक है, अगर 100 के बियॉन्ड है MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम अगर 100 के बियॉन्ड है तो हम कहते हैं इट इज मैक्रोसिटिक, द सेल इज मैक्रोसिटिक यानी सेल लार्ज है। और अगर 80 के बिलो है तो हम कहते हैं द सेल इज माइक्रोसिटिक और द सेल इज स्मॉल। ओके, so this is a normal cell having MCV 80 to 100, more than normal 100 के beyond macrocytic होता है, less than 80 microcytic होता है। तो सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया मतलब द आरबीसी आर लार्ज इन साइज, more than 100, mean corpuscular volume is more than 100 femtoliter. So RBCs are too large and they are known as macrocytes, or the condition is known as macrocytosis, the condition where the RBC become large.
और इसका दूसरा नाम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कॉज क्या होते हैं लार्ज आरबीसी या मैक्रोसाइट बनने के? वही जो हमने पहले पढ़ा था, फैक्टर की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होगी तो उस कंडीशन को हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, या कोई आपने ऐसा ड्रग ले लिया हो या कोई पॉइजन चला गया हो बॉडी में जो डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, तो उस कंडीशन में भी मैक्रोसाइट्स बनते हैं, यानी बड़े सेल्स बनते हैं। या क्रोनिक अल्कोहलिज्म, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, तो अगर कोई बहुत दिन से शराब पी रहा है, ठीक है, दैट इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म, देन दैट अल्कोहल आल्सो कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोसाइट्स, डिफेक्टिव आरबीसी बनते हैं, बड़े बड़े आरबीसी बनते हैं। ठीक है, सो हियर इज अ स्लाइड शोइंग मैक्रोसाइटोसिस। ठीक है, आपको कुछ बड़े बड़े से आरबीसी दिखेंगे, ये बड़ा सा आरबीसी है। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल आरबीसी भी दिखेंगे, और जो नॉर्मल आरबीसी होंगे उनका शेप जो है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होगा, तो बीच में आपको व्हाइट सा दिखेगा क्योंकि बीच में वो दबे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े सेल होते हैं मैक्रोसाइट्स, वो क्योंकि गोल हो जाते हैं कंप्लीटली राउंड, तो उसमें कोई बीच में डिप्रेशन नहीं होता है, तो कोई दबा से नहीं दिखेगा। तो नॉर्मल सेल्स देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये है, इनमें बीच में व्हाइट सा एरिया दिख रहा है, यानी कि दे आर डिस्क लाइक सेल, बाइकॉन्केव, दबे हुए। और ये जो बड़े से दिख रहे हैं आपको सेल, ये वाला, ये सब राउंड मैक्रोसाइट्स हैं, और क्योंकि ये राउंड हो गए हैं, बिल्कुल ओवल हो गए हैं, इनमें कोई बीच में आपको डिप्रेस्ड एरिया नहीं दिखेगी, कोई व्हाइट सा ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये मैक्रोसाइट्स हैं। ये आपको पर्पलिश जो सेल दिख रहा है, ये डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग आरबीसी की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी, ये माइक्रोसाइट्स आपको ये दिख रहे हैं, लार्ज सेल्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये एक नॉलेज है एक्स्ट्रा कि विलियम मर्फी, बहुत पहले जब एनीमिया का कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था और कोई रीजन भी नहीं पता था, बहुत पुरानी बात है, तो विलियम मर्फी ने ये देखा था कि जो नॉनवेज खा रहे होते हैं और लीवर खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका एनीमिया ठीक हो जाता है। रीजन उसे इतना नहीं पता था, बस उसने ये ऑब्जर्व किया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ लीवर इंजेक्शन, जो लीवर ज्यादा खाते हैं उनका एनीमिया सही हो जाता है। लेटर ऑन जॉर्ज मिनेट एंड जॉर्ज विपल दे डिस्कवर्ड दैट लीवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। तो हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द लोग जिनको बी 12 की डिफिशियंसी से एनीमिया हो रहा था, तो जब उन्होंने लीवर खाया तो उनका एनीमिया सही हो गया। इस वजह से इन तीनों को, विलियम मर्फी को, जॉर्ज मिनेट को और जॉर्ज विपल को 1934 का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, microcytic hypochromic anemia. Now microcytic hypochromic, microcytic means the size is less and hypochromic means the color is also less, यानी हीमोग्लोबिन कमी है। साइज कम है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल कॉमन सेंस है कि अगर साइज कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो कंटेंट हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाएगा। कोई चीज अगर बड़ी है तो उसके अंदर जितना हीमोग्लोबिन है, जब वो छोटी हो जाएगी, ये छोटी बनने लगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा, सब प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। साइज कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोसाइट्स कहलाते हैं, छोटे आरबीसीज। और ये नॉर्मली क्योंकि छोटे हैं तो इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हाइपोक्रोमिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एनीमिक पर्सन्स को हम कहते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसका रीजन क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन इसका रीजन होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर आयरन नहीं होता है या कमी होती है आयरन की, या तो आपके डाइट में आयरन की कमी है, या आयरन के मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है, ये बॉडी आपके आयरन को यूज नहीं कर पा रही, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, हीम फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो जाता है, हीम नहीं बन पाता है सही से। तो जब हीम नहीं बन पा रहा है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा, जब हीम सही बनेगा तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये मोस्ट कॉमन है, कई लोगों की डाइट में आयरन की कमी होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो इसमें हीम की प्रॉब्लम आ गई। फिर
ग्लोबिन की प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जैसे थैलेसीमिया में, या कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथीज जो आपको बताई, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मेथिहीमोग्लोबिनिया, इन सब में ग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक और चीज होती है सिड्रोब्लास्टिक डिफेक्ट। सिड्रोब्लास्टिक डिफेक्ट यूजुअली लेड टॉक्सिसिटी में मिलता है, यानी कि लेड आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो आरबीसी का, थोड़ी देर में दे दीजिएगा, आरबीसी का साइज जो होता है वो डिफेक्टिव साइज हो जाते हैं, उसको सिड्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के कॉजेज याद करने हैं तो बहुत सिंपल है, ये याद कर लीजिए, टेल्स। ठीक है, सॉरी, causes of microcytic hypochromic anemia is tails, T for thalassemia, A for anemia of chronic disease। chronic disease मतलब बहुत दिन से कोई बीमारी चली आ रही है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये कैंसर है, उन कंडीशन में भी एनीमिया होता है। तो थैलेसीमिया होगा, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आई से आयरन डिफिशियंसी, एल से लेड पॉइजनिंग और एस से सिड्रोब्लास्ट। लेड पॉइजनिंग ऑल्सो रिजल्ट इन सिड्रोब्लास्ट, पर सिड्रोब्लास्ट कई और चीजों की वजह से भी हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिड्रोब्लास्ट इज लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये एल और एस एक दूसरे से रिलेटेड है बेसिकली। लेड पॉइजनिंग रिजल्ट्स इन सिड्रोब्लास्ट, बट सिड्रोब्लास्ट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी अदर कॉज ऑल्सो। ठीक है, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के रीजंस ये हैं। Clear? So this is a slide where you can able to see the microcytic hypochromic cells। देखिए इसके बीच का जो वो व्हाइट वाला एरिया है कितना बड़ा हुआ है इसमें, ये सब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल है, बिल्कुल व्हाइट सेल्स दिख रहे हैं, रेडनेस ऑलमोस्ट है नहीं, और ज्यादातर सेल इसमें सब एबनॉर्मल है। आपको नॉर्मल सेल्स बहुत कम ढूंढने पे मिलेगा, कुछ कुछ सेल्स आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, ज्यादातर सब माइक्रोसिटिक या हाइपोक्रोमिक है। ठीक है, सो और ये पर्पल जो दिख रहे हैं ये आपको WBC हैं। तो दिस इज द ब्लड पिक्चर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बिल्कुल देख के आप पता कर सकते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने नॉर्मल आरबीसी का देखा था स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए सारे आरबीसीज, जो बीच का सेंट्रल हैलो है वो कितना बड़ा सा हो रहा है, सब व्हाइट से लग रहे हैं, पतली सी एक रिम बस दिख रही है रेड कलर की, बिल्कुल व्हाइट से हो रहा है, और साइज भी छोटा है। ठीक है, सो दिस इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तीसरा है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि कलर भी सेम है, साइज भी सेम है। तो ये कब हो सकता है, जब एक्यूट ब्लड लॉस हो, यानी आपके बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी और ट्रॉमा देयर इज ब्लड लॉस, तो वो ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा है, सेल में कोई डिफेक्ट नहीं है, सेल का साइज सही है, सेल का कलर सही है। ठीक है, या तो हीमोलिटिक एनीमिया हो, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी आरबीसी का साइज सही रहेगा, कलर सही रहेगा, लेकिन बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग आ रही है। देखिए ये सारी चीजें जो नीचे आपने पढ़ी है, यहाँ पे जो लिखा है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हीमोलिटिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, ये सब एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी थे, और ये यहाँ पे आ रहे हैं। सो देयर इज अ पार्डन, ठीक है, सो देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द कॉज। एटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इस कंडीशन में, खास करके नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के कॉज ये सब है, और ये एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी थे। ठीक है, ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टाइम ज्यादा है नहीं, 5 मिनट और है, तो 5 मिनट का रिलैक्स कर लो, फिर अगली क्लास हो सकता है आप लोगों की हो जाए। So we'll continue with the next class. चलिए, Thank you, sir.